is a roller coaster ride. Tell me one of your biggest ups and your biggest downs. हाँ, मेरे को प्रिटी लिटिल शॉप जो है मुझे बताना भी नहीं होता, बट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर अप्लाइड. कैलिफोर्निया, यूएस की we will do work from home, but we want to work with you. So Khushi, now let's talk about what happened with Shark Tank. शार्क टैंक है ऑलमोस्ट 80,000 प्लस एप्लीकेट्स हर ईयर अप्लाई करते हैं. तो आपने जैसे बोला कि आप लोग कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप हो, कितना इन्वेस्टमेंट से आपने चालू किया? So guys, welcome to another episode of Anything But Wrong. Today we have Khushi Manlik with us. She's the founder of The Pretty Little Shop. The Pretty Little Shop is all about a platform where you can personalize gifts for your loved ones, correct? Yes. Can you explain what is Pretty Little Shop in short? Like, Yes. what do you do? What is the meaning of Pretty Little Shop? How it started? एकदम short में अगर आपको समझाना है तो. So Pretty Little Shop is a one-stop customized gifting destination where you can get everything customized. Okay. And not just putting your names or something on the mugs or t-shirts or frames, but it is more about putting your emotions through the gifts that you give to somebody. Correct. So that is what we make. We make story frames. We make meaningful gifts like Spotify frames, music frames, keychains, and a lot more. Correct. Which usually caters to the Gen Z and the people who want to try something innovative in gifting. Right. इससे याद आया, मेरे को फर्स्ट टाइम किसी ने एज अ गेस्ट मेरे को एक गिफ्ट लाके दिया है ऑन माय पॉडकास्ट व्हेन आई एम इंटरव्यूइंग देम. आई वुड लाइक टू शो इट It टू is मी. not one. या थैंक यू सो मच खुशी. आप प्लीज मेरे को दिखा सकते हैं? एंड इट वाज सच अ थॉटफुल गिफ्ट, जेन्युइनली. द पैकेजिंग वॉज रियली स्वीट, बट मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर दिया, तो आपको अनबॉक्सिंग का वीडियो तो हम नहीं दिखा सकते. Such a thoughtful gift. I really love it, and I promise this is always there for all my podcasts. Like, genuinely, this means so much to me. Yes, that is what I wanted. It looks good here. Yeah, crazy. It looks crazy. Samsung was missing here, Yes, so we had to. Definitely, I love the gift, and now I know what idea you have behind gifting. It is not just a gift; it should mean something to the person also, and this means so much to me. And thanks a lot, Khushi. No problem. I absolutely love it. So, Khushi, tell me, when did you start this business? Because as far as I remember, आपका शार्क टैंक पे जो एपिसोड एयर हुआ था वो कैंपस स्पेशल एपिसोड Yes. हुआ था. कैंपस Yes. स्पेशल मतलब सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स Yes. जब शार्क टैंक पे आके अपना आइडियाज दिखाते हैं, पिच करते हैं, वो कैंपस एपिसोड होता है. सो यू वर इन द कैंपस एपिसोड. Yes. दैट मीन्स यू स्टार्टेड दिस बिजनेस प्रीटी अर्ली. Yes. कैन यू टेल अस द एज व्हेन यू स्टार्टेड दिस बिजनेस? So अभी 5 दिन पहले मेरा बर्थडे था. I just turned 22. Oh. When I wish I was 21. Oh. I started this as soon as I finished my 12th standard. After that, I started this business. In my first year of graduation, I started this. 18th to early 18s, you can say. So that time I started it, and along with my 12th standard, like 12th हो गया, उसके बाद along with my graduation, I started a page. I started putting up something on my page, and धीरे धीरे it started growing. And like today, organically we have 20k plus followers, all organic, not a single follower. We have like, and we have never boosted Wow. our posts or anything, and we have millions में views without क्या बात. anything. वाह, मतलब यू So- क्रैक द कंटेंट की Yeah, so because I think कि पेड करके ही सब कुछ नहीं होता. करेक्ट. ऑर्गेनिक ऑडियंस का पावर अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलेगा. इट हैज अ ह्यूज पावर एंड इट इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल इन माय बिजनेस एक्चुअली. दैट इज ग्रेट. बट जैसे एक बात करते हैं, आज बहुत सारे पर्सनलाइज गिफ्टिंग हाँ. प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे. हाउ डू यू डिफरेंशिएट प्रिटी लिटिल शॉप फ्रॉम देम? लाइक उसमें ऐसा क्या है जो बाकी सबके पास नहीं है? ओके, तो ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कस्टमाइज गिफ्टिंग कर रहे हैं, मतलब ठीक है, बट वो लोग मेजरली कॉर्पोरेट ऑर्डर्स को केटर करते हैं या फिर जो कॉर्पोरेट को बल्क में दे सकते हैं. करेक्ट. किसी को अगर सिंगल गिफ्ट चाहिए, ओके चलो, इन केस आपके फैमिली में किसी का बर्थडे का, ठीक है, यू नीड अ गिफ्ट, यू गो टू अ शॉप, you see the gifts over there, those are the same gifts that you will find in the next gift shop. There is no difference in the gift because उन सबका supplier is the same. Oh. जो mass manufacture करती गिफ्ट्स वहां पर उनको सप्लाई करता है, सारे गिफ्ट शॉप्स में वही होता है. तो डिफरेंट यूनिक गिफ्ट्स नहीं है. जो यूनिक वो बोलते हैं बट वो अभी दुकान में भी वही होती है. सो वैसा एज सच नीश गिफ्टिंग में नहीं है. सो दैट इज देयर इज वेयर आई काउंट द गैप एंड आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग प्रिटी लिटिल शॉप, जहाँ पर जो मार्केट में गिफ्ट्स मिल रहे वो नहीं है. ओके.
we have different gifts that don't exist in a shop अभी तक तो जो दुकान में Of course, but you cannot get it आएंगे और जब लोग देखेंगे कि आपका वो प्रोडक्ट इतना हिट हो गया, वो लोग भी shop of course copy करना करेंगे चालू but कर देंगे. there is no limit to creativity Of right course, of we course. can come up with new products every day we have a lot of ideas Correct. so of course we can keep up with the trend and that is what Pretty Little Shop is unique gifting ideas we do राइट बट जैसे आपने बोला कि बाकी सारे लोगों का मैन्युफैक्चरर एक ही है, वो बाइक में बनाता है और उन लोग को सप्लाई कर देता है, तो आप लोग का कैसे होता है यहाँ पे काम? कि हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है लाइक इन हाउस तो नहीं बोल सकते वी डोंट हैव अ वेयर हाउस और शॉप येट बट हम हमारे घर से ही चलता है वी हैव मशीन्स एंड एवरीथिंग एट होम बट आप घर से इतना अच्छा बिजनेस रन का व्यापार हो, आई थिंक दैट इज ग्रेट इन इटसेल्फ ऑलरेडी. yes so like we do it from our place only so हम खुद के नीड के अकॉर्डिंग वो बना सकते हैं जो मुझे बेचना है वो मैं खुद अपने मशीन पे बना सकती हूँ इफ यू आर गेटिंग इट फ्रॉम अ सप्लायर यू डोंट हैव एनी ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम accepting what he's used put it in your shop 100%. so we can innovate and make our own designs and manufacture it at our ease that is the difference मेक्स सेंस. और इसमें आप लोग को टाइम कितना लगता है? क्योंकि यूजुअली जब रेडीमेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें टाइम ही नहीं लगता. ऑर्डर प्लेस किया, आपने डिस्पैच कर दिया, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन थोड़ा योर एंड देयर नेम चेंज कर दिया, वो चेंज करके आप भेज देते हो. बट फिर आप जब उसको स्क्रैच से बनाते हो, डज इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम? I'll tell you what happens is I'll tell you a short story what happened. इसके पहले I used to pick orders Instagram DM से. ओके. कि तो अब दिन के अगर थोड़े 20-25 ऑर्डर आ रहे हैं अगर दिन के तो इट इज़ क्वाइट मैनेजेबल. मैं मेरे फ्री टाइम पे वो सब DM से कर ऑर्डर एक्सेप्ट करके वहीं पर उनका अभी अगर किसी को पोलरॉइड्स बनाने को तो उन्होंने मुझे 16 फोटोज भेजे या फिर मेल कर दिया उसी में एड्रेस डाल दिया उसी में पेमेंट स्क्रीनशॉट डाल दिया मेरे पास एक नोट पैड है वहाँ पर मैं सब नोट करती हूँ जब बन जाएगा डिस्पैच हो जाएगा. सेम यूज टू टेक लाइक 8 days क्योंकि कस्टमाइज होने को टाइम लगता है इट इज नॉट रेडी. आफ्टर द शार्प टैंक थिंग गॉट एयर the DMs were flooded, my email was flooded, my WhatsApp was flooded with orders and there were payments coming from everywhere and I did not know कि किसका payment कहाँ से आ रहा है. So and at that time it was not possible to process the orders smoothly. Of course, you were not prepared for it. If Naman is ordering something, you sent me a mail from your work ID and then you're giving address आपकी girlfriend का. So when the product is in front of me, how do I know कि ये product किसका है? So there was a huge it is a tedious process to make customized gifts. Correct. So after Shark Tank, we found that and we streamlined everything. And now अगर हमारी वेबसाइट पर आकर कोई 10,000 ऑर्डर भी दिन के प्लेस करता है हम उसको स्मूथली प्रोसेस कर सकते हैं. So like we invested in tech because for customization tech is must. Correct. So now we are in process of like a proper tech automated website is in pipeline. Correct. Which will be live A lot of standardization be allowed. for everything like customization. You can put your picture, put the song, and you can see how your play is going to be. Oh. Abhi tak it was not there. In customized order does take time. It takes us 8 to 10 working days to deliver the orders Correct. to any pin code. But people are ready to give that time. I mean, exactly. When the gift is so personalized, 8 से 10 दिन लोग वेट कर सकते हैं. And people saw my pitch, so they knew, okay, by she is doing on her own. So they're like, okay, take 12 days, but we want to order it from you. From you, It correct. is like that. शार्क टैंक पे तो हम आएंगे वापस, बिकॉज शार्क टैंक का मेरे को बहुत कुछ आपसे समझना है, मेरे को बहुत कुछ समझना है कि आपने वो सब कैसे किया, क्या किया. बट जब हम पर्सनलाइज गिफ्ट्स के बारे में बात करते हैं, वन थिंग इज कि ये बहुत ही इमोशनल परचेज होता है, ठीक है, एंड इसमें रेपिटेटिवनेस नहीं हो सकती ज़्यादा. फॉर एग्जाम्पल कि समझिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक वो म्यूजिक क्लिप ले लिया, बट आई विल नॉट कीप ऑन बाइंग म्यूजिक. लाइक एक बार कर दिया हो गया कर. तो आप ये ट्रेंड्स के साथ आप खुद को चेंज कैसे करते हो? यस सो अब एक बार म्यूजिक प्ले आपने किसी एक पर्सन के लिए ऑर्डर कर दी Correct. तो वो जब रखी थी तो 10 लोग उसको देखेंगे वो चीज को. Correct. वो 10 लोगों तक हम पहुंच गए. बट अब ऐसा तो नहीं कि हम म्यूजिक प्ले पे स्टॉप हो जाएंगे. Right. वी आर इंक्रीजिंग द SKUs इन अ ह्यूज अमाउंट कि मतलब यू विल डेफिनेटली लाइन बैक ऑन योर वेबसाइट अगेन and you will definitely make a purchase because a lot of options will be providing. So it is not that हाँ एक बार कर दिया, you will definitely find something cute that you would want to own. But because we will keep up changing along with the trend that is current. So like if there was Coldplay concert, so we had Coldplay का music plates. उसके तो सारे Coldplay का fans were crazy. So like जैसे जैसे कुछ भी trend change होते रहेगा तो we keep आप applying our products. No, just using it takes a lot of things like
पोलोराइड्स हो गए, बहुत सारी चीजें. राइट. बट So- आई थिंक दैट इज अ गुड आइडिया ऑल्सो कि पर्सनलाइजेशन इज योर फोर्टे. हमको वो करना ही है, बट हमको करंट ट्रेंड्स को तो Current पूरा trends- टाइम साथ में रखना ही है. राइट. एंड आई थिंक दैट इज व्हाई वो रिपीट ऑर्डर्स हो रहे हैं एंड पीपल आर स्टिल कनेक्टेड टू योर प्लेटफॉर्म ऑल्सो. people are connected, I think, because our social media game is not dead. ओके. A lot of people, their products are getting sold बहुत massive amount में, but the social media is dead, completely dead. Our social media, we keep interacting with people, we keep putting up stories, we come live, we talk to them, like we keep them engaged, we keep dropping something, yeah, something is coming. Now we are rebranding, we are coming with a rebranding, we are redesigning our logo. So rebranding, so the people are aware that something is coming up, people are Waiting for it. हाँ. Okay. So we keep them engaged. सारा प्रोसेस भी आप लोग ऑनेस्टली Yes, process भी मैं पूरा बताती हूँ, मैं कैसे बनाती हूँ, मैं कैसे पैक करती हूँ, everything is candid. Correct. So I think that is what keeps the book. बट एज अ 3-year-old entrepreneur, अगर आपको किसी को एडवाइस देनी हो कि अगर आप कोई लड़का या लड़की आज अपना बिजनेस चालू कर रहा है, डू दे नीड टू फोकस ऑन इंस्टाग्राम, एंड इफ दे डू देन Of course. हाउ शुड दे टेक इट फॉरवर्ड? लाइक समझो उन्होंने जस्ट अभी अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया है, हाँ. उनको क्या करना चाहिए इंस्टाग्राम पे वो कनेक्शन करने के लिए? Okay, so I will tell you, when I started it in December 2021, it was not कि एक दिन में मेरे 1000 followers बन गए. It takes time. So I would say कि there is no right time. If you think you have something, you want to build it, just go for it. The time you decide that you want to do this, that is the right time to start. Start posting things, start gaining followers. जो भी है ना, put it in front of people. People will definitely like it, accept it, or give you some feedback, and then you can improve. Correct. Don't keep it to yourself. कुछ है, डालो, पोस्ट करो, रील्स बनाओ, फैलाओ उसको. कॉलेज में हो, अगर मेरे जैसा कॉलेज में सबको बोलो, आई एम कमिंग अप विद दिस थिंग, लेट्स फॉलो, लेट्स बिल्ड समथिंग. डू इट, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया का पावर इज अनमैचेबल. ऑफ कोर्स. Because the people who used to be relied on only WhatsApp and Facebook, even they are having accounts on Instagram. It my mom that they never used Instagram, Right. but last 3 years they have, and they keep up showing you, वो देखिए कुछ तो आया, कुछ ऑर्डर करो क्या Instagram. राइट. तो राइट. अभी हो रहा है. फ्रेंड्स बहुत चाहिए. हाँ, सोशल मीडिया गेम तो स्ट्रांग होना ही चाहिए. होना ही चाहिए. Yes. एंड मैंने एक और चीज नोटिस की है कि जिनका सोशल मीडिया गेम स्ट्रांग होता है, उनका ऑर्डर कन्वर्जन, उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, उनका आरटीओस आर सो मच बेटर. I'll tell you, ads में पैसे डालना is like putting your money, just letting it go. Results आते हैं बहुत टाइम बाद. बहुत टाइम बाद. यस, इट इज. I have not experienced it, but I have got to know this from a lot of people who are doing it. कि it takes a lot of time. और मैं तो कॉलेज में थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि भाई मैं महीने का 1 लाख का एड्स रन करो और फिर वेट करो कि 2 लाख का सेल आए. तो मेरे लिए तो सोशल मीडिया ही था सब कुछ. तो आई स्टार्टेड पोस्टिंग कैंडिड रील्स, या हाँ भाई आज मैं ये कर रही हूँ, एंड दैट गेन्ड मी मोर फॉलोअर्स, And मोर that's ऑर्डर्स देन also- व्हाट एड्स कुड डू. करेक्ट. 100%. So I think running ads is that don't underestimate the organic reach, organic customer. तो आपने आज तक एड्स रनी? मैंने ads कभी नहीं रन की, कभी भी नहीं मेरे पेज पे रन की. वाओ. जबकि आज का हर बिजनेस इज सो डिपेंडेंट ऑन एड्स Exactly. कमिंग अक्रॉस. We don't need इतना आ रहा है organic, और इतना आ रहा है कि मतलब I'm not able to take some orders. वाओ, दैट इज अ ग्रेट फीलिंग ऑन. I like कि जब तक organic, and this doesn't need organic good. What I have in my mind is that we are going to go with a strong content creation game. We are just going to focus on content creation. We're not going to run ads even in future. I'm saying this on camera. Wow. We're not going to run. That is a big claim, to be honest, because I'll tell you why. I'll just tell you why. जब आपका फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांड है जिनका कंटेंट गेम उतना स्ट्रांग नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, वो जब एड्स रन करते हैं प्रोबेबली उनको ROAS आ रहा है 2 या 3 का, फॉर एग्जाम्पल. बट जिनका कंटेंट गेम बहुत स्ट्रांग है, जब वो एड्स रन करते हैं, एक बार अपना कंटेंट सब कुछ सेट करने के बाद, स्टार्टिंग में नहीं, Okay. जब उस पॉइंट पे जब वो लोग अपना एड्स रन करते हैं, उनका ROAS हो जाता है सीधा 10-12 का. Okay. So every 1 lakh के spend पे if you are getting a revenue of 12 lakh rupees, I don't think so you should Yes. say no to ads. Not no, but currently. Currently yes, आपका वो जो फोकस है वो एकदम सही है कि हमको ऑर्गेनिक रखना है, उसको स्टेबली स्लोली अच्छे से ग्रो करना. वेरी राइट. बट जस्ट माई ओपिनियन, डोंट एवर से नो टू एड्स, बिकॉज यू डोंट नो कि 3 साल बाद जाके योर ब्रांडिंग इज एट दैट पॉइंट कि दैट 1 month of ads will probably take you to one level सीधा up.
Yes, maybe when we are at that level, when we have a proper strategic team to decide, I might leave it out to them. Exactly. You would I don't have a content creation color team or video. No, I only shoot, I only edit, I only post it. Wow, that's So अभी तो मैं मेरे हिसाब से कर रही हूँ, but then आगे जाके we'll see how it correct. goes. Well, of course. With We're time, open to suggestions, reviews and everything. right, definitely. Organically, अभी आप लोग monthly कितना orders fulfill कर लो monthly? अभी if you ask me, it is around अभी 50. हम लोग ने जब भी मेरा एयर हुआ एपिसोड 1 week में भी कस्टमाइज 15,000 plus orders in a week 8,000. manually through DMs only. That was मतलब उनका भी ये वेबसाइट भी नहीं की, लाइक अभी मैंने एक नॉर्मल वेबसाइट बनाई है कि एटलीस्ट मेरा सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो. बट 15,000 लोगों को डीएम में रिप्लाई करना है. DMs, emails, WhatsApp. बाप Try to create another email कि हाँ भाई आधे लोग यहाँ पे भेज दो, मेरा email full हो गया. ओ बाप रे, hectic. That is so hectic. I not slept for almost 4 days after my episode getting here. बाप रे, and this was all because of the Shark Tank का episode. Actually, people liked the product. Correct. And they liked the honesty in your pitch also. Everything they were like, why not give it a try? They were like, okay, we want to support you. And they're placing the order. They're like, okay, I need support now. I need some rest now. Wow, crazy. Okay, तो इस टॉपिक को एक बार रैप करने के लिए आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन. दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मेंटेनिंग योर कस्टमर रिलेशन. क्योंकि एक बार जो कस्टमर को गिफ्ट अच्छी लग गई, आपको उनका तो रिलेशन भी बना के रखना ताकि वो सेकंड टाइम भी गिफ्ट आप ही से ही लेवे. करेक्ट. एंड गिफ्टिंग की अपॉर्चुनिटीज तो मल्टीपल आता है ईयरली, तो आपको चाहिए कि वो आपका रिपीटेड कस्टमर बन जाए. आप क्या करते हो उनके साथ तो कस्टमर रिलेशन मेंटेन करने के लिए? Okay. So अभी के लिए हम लोग के पास एक डेटा रेडी है जहाँ पे वी टेक डाउन की वी आर एक्चुअली कमिंग अप विद सब्सक्रिप्शन मॉडल काइंड ऑफ थिंग वेर इन यू कैन पुट इन आपके जो 4-5 स्पेशल इवेंट्स है कि हाँ भाई ये मेरी मॉम का बर्थडे, मेरे डैड का बर्थडे, फ्रेंड का बर्थडे, एंड देन वी नोटिफाई यू 15 days पहले कि हाँ अभी इसका बर्थडे आ रहा है और ये ऑप्शंस है इस इंसान के लिए, सो यू कैन कस्टमाइज समथिंग सॉर्ट ऑफ दिस. ऐसा हुआ यार. That is again so thoughtful कि जो पर्सन जो बाहर जाएंगे, yes, so we have to remind them. तो उनको उस टाइम दिमाग भी नहीं लगाना रहेगा कि मैं क्या ढूंढूं क्या options. आपने ऑप्शन भी दे दिया है. वाओ, दैट इज अगेन सो थॉटफुल, क्रेजी. ये चक्कर में तो आई एम श्योर कस्टमर फिर आपके साथ जुड़ा ही रहेगा. यही सोच मॉम के लिए जब मैंने ऑप्शन दिया तो मैं डैड के लिए भी ऑप्शन दूंगा, छोटे भाई के लिए भी ऑप्शन दूंगा, दोस्तों के लिए, मेरी एक दोस्त के लिए 10 दोस्तों के लिए. Crazy. Love it. Absolutely. Very good point. So, Khushi, now let's talk about what happened with Shark Tank. Okay. Firstly, for a 21-year-old to go on Shark Tank is a very big thing. अब समझ लो बहुत सारे होंगे यंगस्टर्स जिनको जाना है शार्क टैंक पे अपना आइडियाज पिच करना है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती. इट्स डिफिकल्ट टू क्रैक योर वे थ्रू. करेक्ट. योर ब्रांड डिड दैट, यू डिड दैट. अब मेरे को पहले बताइए कि आपको जब मालूम पड़ा कि ओके यू आर नाउ गोइंग टू शार्क टैंक, व्हाट वाज योर माइंडसेट एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इट? बिकॉज वो नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हो गया, आई एम श्योर. ऐसे 5 शार्क्स के सामने बैठ के अपना आइडिया एट दैट एज पिच करना, इट्स स्कैरी. ऑफ कोर्स इट्स स्कैरी, राइट? आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया वो चीज़ समझे? So I'll tell you कि शार्क टैंक में ऑलमोस्ट 80,000 प्लस एप्लीकेट्स हर ईयर अप्लाई करते हैं. 80,000? हाँ, 80,000. उसमें से देर आर 8 राउंड्स ऑफ सिलेक्शन. हाँ, वीडियो ऑडियो एंड एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अपना फाइनेंशियल सबमिट करो, ये करो. उसके बाद एक लाइव राउंड होता है जहाँ पर मिनी शार्क टैंक जैसा होता है. द पीपल फ्रॉम देयर टीम दे इंटरव्यू यू पूरा ऐसे प्रॉपर, यू हैव टू टेक योर प्रोडक्ट्स एवरीथिंग. उसके बाद भी और 2 प्रोसेसेस होते हैं, देन यू रीच्ड इन देयर. एंड उसके बाद भी व्हेन योर पिच इज रिकॉर्डेड देयर इज नो गारंटी कि आपका पिच एयर होगा. ओके, देयर इज नो श्योरिटी. बिकॉज 16,000 में से अराउंड 200-250 पीपल गेट टू पिच देयर इन फ्रंट ऑफ द शार्क. मेन शार्क. यस. उसमें से भी अराउंड 150-160 ही दिखाए जाते हैं स्क्रीन पर. So till the date your episode gets aired, there is no guarantee कि आप दिखने वाले हो कोटी. Oh, but that is तो थोड़ा. Yeah, it is very confidential also कि हो गया, आपने आपका काम कर दिया, आपने पिच कर दिया, आपने सब कुछ किया, you have to get back your life, करो अपना जो कर रहे हो. आया तो आया, well and good. नहीं आया तो it is like that. कुछ there is no surety because मेरा पिच 17 Jan को आया और मेरे को 16 Jan को रात को 10:30 बजे कॉल करके बताया गया कि कल आने वाला है आपका पेज. तब एक रात में मैं क्या ही कर रही हूँ. आई कुडंट इवन प्रोक्योर थिंग्स उस दिन रात को के हाँ भाई चलो कल आने वाला, तो मैं सब एक दिन में इट वॉज नॉट पॉसिबल. सो इट
It is unforeseen, नहीं पता Correct, कि correct. is it going to get करेक्ट red. ये चीज मेरे को पहले भी एक दो और मेरे यहाँ पे शार्क टैंक गेस्ट आए हुए जिन्होंने अपना हाँ. ब्रांड लेके गए थे, हाँ. उन्होंने भी मेरे को बोला कि हमको एक रात पहले ही मालूम पड़ा Yes. कि और आशुतोष को तो सुबह को मालूम पड़ा कि उनका रात को एपिसोड एयर होने वाला है सीजन 2 पे. तो क्या ही कर सकते हैं तो फिर तो. हाउ डू यू स्टे प्रिपेयर्ड फॉर So it is just that. और when जब भी इसके पहले भी जो सिलेक्शन राउंड्स होते हैं, you get a mail and then you get a call from the team that you're selected for the next round. So almost 3 या 4 rounds, चारों टाइम I was in the lecture when I got that mail. You're selected for this round. Okay. अब मैं क्या ही करूँ, लेक्चर छोड़ के जा भी नहीं सकती, क्या ही. एंड दैट एक्साइटमेंट लेवल इज अनदर क्रेजी इट इज कि हाँ, क्योंकि सोचा ही नहीं था, मैं तो बस फॉर्म्स भरते गई. आई वॉज ट्रू टू माई सेल्फ कि हाँ भाई हुआ तो वक्त यही है, मेरा जो है यही है. एंड आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर कि आई वुड गेट फीचर्ड ओवर देयर बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ, वही जो मैंने एनिमेट उधर पिच में बोला कि इतने सारे लोग जो लाखों करोड़ों में कमा रहे तो मेरा क्यों ही आएगा. आई वॉज लाइक कि मुझे मेरे आइडिया पर भरोसा है कि दिस इज गोइंग टू ग्रो एंड आई शुड गिव इट अ ट्राई. सो आई जस्ट गिव इट अ ट्राई. मैंने सब भरा एंड एक एक स्टेप जैसे जैसे आगे जाते गए आई वॉज shocked myself कि how am I selected because I know my idea is good but my revenue is not that strong at that level to be on Shark Tank India because sorry to interrupt but I don't think so revenues उतना मैटर करता है when your business is so honest. that is what revenue was not strong but I believed in my business. Yes. I knew that my idea is going to go hit. I knew that. I believed in that कि Pretty Little Shop तो बड़ा होगा, revenue अभी नहीं है क्योंकि मैं अकेली करती हूँ. So that is, तो मैंने वही दिमाग में रखा कि जो भी हो रहा है. I was little dicey about it till the pitch कि revenue कम है तो I might not get selected. But idea तो अच्छा है ना, why not I try to pitch it. मेरा 100% Of course. So I just bet on my idea कि हाँ मेरे को Pretty Little Shop जो है मुझे बताना है दुनिया को, हो तो नहीं हो तो नहीं हो. तो I went there and I remember जब वो Shark Tank का ट्यून बजता है, the tune when you हाँ, on that tune when I was entering इतने सारे थॉट्स चल रहे थे मेरे दिमाग के अंदर. Like please explain. आई couldn't believe कि जो मैं टीवी पर देखती थी घर पे बैठ के जिस ट्यून पे मैं चल रही हूँ, it was very very unreal. एंड मेरे डैड भी थे, मतलब he was there पीछे, मतलब बैठे थे. अंदर वही लगा था मेरे डैड देखेंगे तो कितना मस्त लगेगा. बिकॉज माई डैड एंड मी आर अ बिग फैन ऑफ शार्क टैंक इंडिया. अभी हम लोग सीजन 1 से देखते थे और मेरे डैड बोले कि एक दिन तू जाएगी, और वो सब सच हो रहा था. वो डोर खुला, मेरे सामने 5 शॉट्स बैठे एंड आई फॉरगॉट एवरीथिंग. I forgot my name also. I couldn't speak anything because it was very, very emotional for me. That all the 5 sharks are sitting in front of me. I actually made it till here. Yes. And now I have a chance. I can tell them about Pretty Little Shop. It is so big for Pretty Little Shop. It is an overwhelming Then feeling. I'm going to tell my business इनको मैं बता सकूंगी कि मैं ये कर रही हूँ and this is Pretty Little Shop because I am very attached to Pretty Little Shop. I treat it like a baby. Correct. It is because it has done everything for me in life. Of course. After 12th, I did not get a single penny from my home and Pretty Little Shop has been there. मेरा graduation हो, कुछ भी हो, everything. You have so, to like nurture. अब honestly, people know me because of you. Yes. So it was very emotional for me. And I forgot my pitch. Then I was like, I took 2 minutes. I had a glass of water. And then when I started, I did not stop. फिर I was like, ठीक है यार, जो है आज है, मुझे आज मेरे को चांस मिला. I have to grab this opportunity. I have to give my 100%. And फिर जब मैंने सब कुछ बोला, and then it turned out to be amazing. Yes. I did not even look nervous when I Yes, later saw the pitch. Yes. It was quite nice. You were very confident during the pitch. Like Starting में I forgot, and then forgot in the sense I forgot my name also कि कहाँ से start करूँ मैं नहीं पता. right. But वो part I'm sure edit हो गया. हाँ, because मेरा pitch was for 2 hours. Like 2 hours I was in the tank. But the pitch जो short कर दी is 20 minutes YouTube पर, and जब TV पर आया था तब it was 35 minutes. Okay. So it is a very long time duration when you can be in a tank. A lot of things they discuss with you. Correct. But not everything is shown. They cut के तो alter Yeah, जो होता होता है वैसे पता है. Correct. Makes sense. Yes. तो but एक बात बताइए. I've seen that episode. I remember the sharks loving you. They loved what you were doing. They loved how you were doing. They loved the honesty about you. Everything, like they were fond of it. But still, they did not invest because they didn't think it was a much scalable business at this point. Yes. They knew it will scale. Time लगेगा. अभी investable है कि नहीं? course. They weren't sure. Correct.
उन्होंने क्या आपको ऐसा फीडबैक दिया जो आपने तुरंत टैंक से निकलते क्या अपना बिजनेस में अप्लाई करना चालू किया एंड आपको उसके वजह से डिफरेंस भी दिखने लग गया कि ऐसा क्या था उनका एडवाइस? तो फर्स्टली तो विनीता और अमन ने नंबर दिया कि Oh, like Yes, yeah, yes, yes. they- Did you ever call back on that? Vinita and we talk on WhatsApp. अरे क्या बात है. I'm meeting her now at tech. Like Wow, yes, lovely. it is quite good. She tells me whatever I need to do. मतलब वो मुझे हेल्प कर रहे हैं कि क्या कैसे करना है. Great. It is going to take time, but we are coming up with something big. Okay, So that's charge. they are in touch. They help us how to go ahead with little shop. And one thing they told me was कि अभी मैं 21 साल की हूँ, ठीक है, और ये मेरा फर्स्ट बिजनेस है, तो there are endless opportunities that you could Yes, explore. yes. But I did not actually take that feedback because I think that this is something I want to do. Correct. And I am 101% sure that मैं जो भी करूँगी मैं गिफ्टिंग में ही करूँगी. Correct. Because I like gifting people. I did not receive any gifts. मेरे टाइम पे तो I want to be in this industry and deliver as much as I can. Correct. जो meaningful go. Correct. And So this- putting a smile on people's face, whoever's receiving it, Yeah. whoever's giving it, whoever's receiving it, दो एक्ट उसमें smile तो आएगी. गिफ्टिंग तो is where you receive joy. Yes. भाई कोई गिफ्ट करता है किसी को, वो भी खुश, रिसीव करने वाला भी खुश, कस्टमर भी खुश. आपने जब से मेरे को दिया मेरा स्माइल ही नहीं हट रहा, मेरे को इतना अच्छा लग गया. This was nice. Definitely. So, I wanted to do that. They told me कि इसमें ऐसा कुछ ढूंढो जिसको तुम स्केल कर सकते हो. तो like अभी I wanted to do the 3D prints on a large scale, but it requires personal touch. So they are like कि this cannot be scaled. But then when we met, we gave it a thought, and there was a possibility of scaling this. So we have made a website wherein we can actually scale this because जब सब technically सही होगा, tech हमारा सही होगा, strong होगा, तो सब कुछ scale हो सकता है. Okay. So then we built a website as Sharks told me कि it needs to be a website wherein people can customize their own thing. Okay. वहीं पर वो customize हो और सिर्फ फिर बनना रहे. बनने का भी 75% should be ready and you just have to add some personal touch from your side, like customizing a name or something like that. So we worked on it and then we are streamlining the process of customizing every gift. एकदम easy. Correct. Like 4 clicks you can customize your gift. कितना भी बड़ा gift हो. So that is what I got a feedback from them and we started applying it. And that is it. And we did not have a website. When I pitched there, I did not have a website. So after that, I started building a website and Aerone ke pehle I got a small Shopify wala website. And then in backend, I started on subdomain. We started coding a proper website which is required for our customization. Okay. It will be Shopify doesn't help you customize? Shop. I'll tell you that one thing that I'm not happy with Shopify is कि Shopify website building is easy. उन्होंने सब कुछ बहुत easy कर दिया है. I agree. But it is more, catering to e-commerce businesses जिनका e-commerce है. मतलब if I take your example, टी-शर्ट किसी ने ऑर्डर किया, कस्टमाइज नहीं है, ठीक है, समझो नॉर्मल की. आप एक रात बैठ के Shopify पे एकदम मस्त वेबसाइट बना सकते हो एकदम इजीली. उस पे आएगा कस्टमर, टी शर्ट बुक करेगा, जो भी ऑर्डर करेगा, पेमेंट करेगा, उसको नोटिफिकेशन जाएगा, आपके पास ऑर्डर आईडी आ गया, आप उसको पैक कर रहे हो, शिप कर रहे हो, खत्म. ऐसे आपको दिन के 1000 भी ऑर्डर आ जाए तो क्योंकि आपको उधर दिखता है कि नमन के नाम से ये ऑर्डर है, इतना क्वांटिटी है, ये प्रोडक्ट का SKU है. इट इज़ ईजी. कस्टमाइजेशन के लिए दे हैव नॉट डन एनीथिंग एज सच क्योंकि मुझे हर एक ऑर्डर में जाके देखना पड़ता है कि ये फोटो है तो ये किसका है. किसी के एक के जगह पे 4 ऑर्डर्स भी होके लाइक इट इज़ अ टीडियस प्रोसेस. विद शॉपिफाई में इतना ईजी नहीं है. देर आर लॉट ऑफ प्लगइन्स एंड एवरीथिंग बट स्टिल इट इज़ नॉट हाउ वी वांट इट टू बी. और डिजाइनिंग वगैरह भी ऑटोमेशन करना पड़ता है. तो शॉपिफाई इज केटरिंग ओनली टू ई-कॉमर्स बिजनेसेस. आई थिंक देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर कस्टमाइज्ड वेबसाइट्स भी इतनी ही इजी ही बने जैसे शॉपिफाई पे बाकी के. एवरीबडी टोल्ड मी शॉपिफाई पे बना ले शॉप, बट इट इज प्रैक्टिकली नॉट हेल्पिंग मी. For you. इफ यू वांट टू गेट कोलरॉइड्स मेड, आप वेबसाइट पे 16 फोटो अपलोड करोगे, वो जेपीजी में मेरे इधर स्टोर भी तो होने चाहिए ना, मेरे यहाँ पर वो ओपन भी तो होने चाहिए ना. ये सब नहीं प्रोवाइडेड. देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निकल एरर्स. या मे बी आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड मच. आई एम नॉट सेइंग कि मुझे सब पता है. हाँ. देयर मस्ट बी समथिंग, Correct. बट द वे आई वांट इट इज नॉट Correct. And easy to learn. So that is why we have to code a website. Like Shopify should do something for customized websites as well. This is what I think. I think they must be also do it. They do provide plugins and everything, but of course it Not comes that. down.
huge cost. Okay, of course, those extra plugins are also charged. They are very, very, very costly. बट आपने कभी उसका इकोनॉमिक मैथ किया है कि अगर मैं ये प्लगइन्स को डालूं हाँ, तो जो किया। कॉस्ट आता है और जो मैं खुद पूरा वेबसाइट बनाऊं और उसको मेंटेन करने का भी जो कॉस्ट होता है, हाँ, मैथ विच इज हाँ. बेटर. This is better which I'm doing Okay. for me because there are a lot of things. Designing वगैरह भी मुझे automate करना है. Like the Spotify play which your friend got, Yes. this music play. Then अब फोटो अपलोड करके गाना अपलोड किया उसके पीछे का प्रोसेस तो हमें करना पड़ रहा है ना डिजाइनर टीम को. सो वी आर ऑटोमेटिंग दैट एज वेल. कि अरे डिजाइन वहीं पे फोटो अपलोड करोगे जो गाना डालोगे बारकोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा वहीं पे डिजाइन बन जाएगा. वेरी तो दैट इज व्हाट वी कैन डू फ्रॉम आवर एंड. तो और इजी हो जाएगा प्रोसेस स्केल करने के लिए. इजी हो जाएगा इफ यू वांट टू एक्सपैंड इंटरनेशनल. आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट फीडबैक आल्सो. आई मीन अगर फंडिंग मिले नहीं मिले, अगर ऐसे फीडबैक्स आप मिल गए और अगर आप उसको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट्स देख पा रहे, आई थिंक दैट इज ओनली मोर देन इनफ. I think yes, that is great. And I remember that episode में अनुपम I think had told you कि आपको लग रहा है कि हम अगर आपको भी फंड करेंगे तो हम आपको हेल्प करेंगे. Yes. बट टू बी ऑनेस्ट उन्होंने ऐसा बोला था कि दैट इज नॉट ट्रू. दैट इज द ग्रेटेस्ट एडवाइस आई एवर रिसीव्ड. एग्जैक्टली. एंड जब मैंने भी वो चीज सुनी मैं समझा कि वाओ, लाइक यस दैट वाज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर उस टाइम फंडिंग ले लेते थे इन्वेस्टर प्रेशर Exactly. ये वायर सब हो जाता. अभी आपका इन्वेस्टर नहीं है पर आप फिर भी उसको स्केल कर पा रहे हो खुद से. एंड आई बिलीव कि बूटस्ट्रैप इज द बेस्ट. ठीक है बूटस्ट्रैप को ग्रो होने के लिए टाइम लगता है. इट टेक्स टाइम. बट बूटस्ट्रैप कंपनीज आई थिंक आर मोर बेटर. I'll give you an example. Zerodha bootstrapped, but they are almost filing 150 crores का profit every quarter. करेक्ट. जीरो और ग्रो वगैरह तो फिर भी they are not profitable. Because investor pressure पैसे तो आ जाते हैं उसके बाद वो जब देने का आता है ना तो आई थिंक बूटस्ट्रैप इज स्टिल. और ये स्टेज पे तो बूटस्ट्रैप होना ही बेटर है बिकॉज आफ्टर शार्क टैंक आई रिसीव इतने सारे इन्वेस्टमेंट के लिए कॉल्स messages. I were contacted आशुतोष पर कि how do I deal with this? People are calling me. People are like नहीं आज ही मिलो हम आपके एड्रेस पे आके खड़े मिलो क्योंकि मेरा एड्रेस भी ब्लोड अप था हर जगह. तो people used to come to my house कि at least meet for 15 minutes. 8 मीटिंग करते. तो how do I like we want to invest. तो शार्क टैंक पे तो डील नहीं मिली बट उसके बाद बहुत सारे लोग but I still not taken any investment or anything as such. No partner, no co-founder. Because I think at this stage we can build it ourselves. yes, थोड़ा और एक 1 to 10 भी आप खुद से Yes, लेके yes. जाओ फिर 10 to 100. 0 से 1 तो अगर 1 से 10 अभी मुझे जाना तो हम कर लेंगे. Yeah, of course, I'm sure आप लोग कर लोगे. I'm sure. तो आपने जैसे बोला कि आप लोग completely bootstrap हो, कितना इन्वेस्टमेंट्स आपने चालू किया? Okay. I think this doesn't make sense, but I did not invest a single penny to start this. I told this in Shark Tank also. What I did was I started an Instagram page and तभी I was sure I wanted to go in gifting. तो मैंने देखा कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है. तभी म्यूजिक प्लेक्स वर वेरी न्यू. इतने कोई लोग बेचते भी नहीं थे किसी को पता नहीं था. Correct. This is your top 4 years. हाँ US वगैरह में म्यूजिक प्लेक्स वर वेरी फेमस. So I got a photo from there. I put it up on my Instagram. I got my first order. उसी के पैसे से लाइक उसमें से मैंने COJ सटा के जो पैसा बचा थोड़ा पैकेजिंग का सामान लेके आके किया. एक ऑर्डर गया उसको पोस्ट किया उसका रील बना उससे और 10 ऑर्डर्स आए. दैट इज हाउ आई स्टार्टेड. लाइक आई डिड नॉट इन्वेस्ट. जो आपके प्रॉफिट्स आ रहे थे उसको उसी को आई स्टार्टेड फ्री इन्वेस्टिंग बट ऐसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ थिंग देयर वाज नथिंग. That is so inspiring कि 0 रुपीज इन्वेस्ट करके अभी आप कितना रेवेन्यू कर रहे हो. हमने ये मंथ का अभी तक कैलकुलेट ही नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज टाइम ही नहीं मिला है. सो वी आर स्टिल वी हैव एस्टिमेटेड कि हमने प्रोजेक्ट किया है कि ये मंथ पे हम लोग 20 lakhs पर क्लोज करेंगे इन मंथ. जो मैंने 4 साल में सिर्फ 18 lakhs मेरा लाइफ टाइम रेवेन्यू था. और अभी आप लोग 1 महीने का उतना कर रहे हो. वाओ यार, दैट इज सो इम्प्रेसिव. लाइक वाओ, क्रेजी. तो एक बात बताओ, ये बिजनेस में COD तो चलता ही नहीं होगा है ना? चलता है बट वी डोंट डू इट. हाँ, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली लॉस मेकिंग कि RTO COD में बहुत ज्यादा हो जाता है. और किसी ने मंगाया नहीं लिया फिर उसके फोटो का हम क्या करें. एग्जैक्टली व्हाट आई वाज कमिंग डाउन टू कि वो तो चलता ही नहीं होगा. बट जब आपने बोला कि आपको शार्क टैंक वाले वीक में शार्क टैंक वाले एपिसोड एयर होने के बाद 15,000 ऑर्डर्स आए, वो कैपिटल सबके ऑर्डर नहीं प्रीपेड ही था कैपिटल. Yes. तो दैट वाज अ प्योर प्रॉफिट्स फॉर यू पोस्ट दैट. बट फिर भी 15,000 ऑर्डर्स को प्रोसेस कैसे किया आपने? ओके तो जैसे ही मेरा शार्क टैंक का एपिसोड एयर हुआ
तो उसी दिन एक्चुअली शाम को हमने स्टोरीज डाल दी कि वी आर हायरिंग अ ग्राफिक डिजाइनर, वी आर हायरिंग अ सोशल मीडिया मैनेजर. एंड मेरे को लगा नहीं था इतने लोग अप्लाई करेंगे, बट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर अप्लाइड. कैलिफोर्निया, यूएस की, वी विल डू वर्क फ्रॉम होम बट वी वांट टू वर्क विथ यू. सो इंस्टेंटली हमने उसी दिन नेक्स्ट दिन भी थोड़ा कि अभी डिले करके मतलब नहीं है, वी बिल्ट अ टीम कि हाँ जो जो एटलीस्ट वी डिड नॉट गो फॉर वर्क फ्रॉम होम. वी वर्क फ्रॉम होम तो अभी नहीं चलेगा, वर्क फ्रॉम ऑफिस ओनली. वी shortlisted some people कि those who live around us, who can work, who have those skills. हमने एक छोटी सी टीम बना ली एंड वी स्टार्टेड प्रोसेसिंग ऑर्डर्स, क्योंकि उसके पहले तो मेरे पास टीम नहीं थी. आप अकेले थे? हाँ, मैंने सुना था आपका छोटा भाई मेरा छोटा भाई वो हेल्प करता है. यस, ही स्टिल डज. अभी तो पूरी फैमिली खुद की. ऑफ कोर्स अब उनको दिख रहा है कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया. एवरीवन So now we are built a team and we are gradually processing to expand. How big is your team? We did 6 people. 6 people. But 6 people in 2 weeks, it is. I gave my first salary also. It was the first salary I gave to somebody, and I was like, wow. ये करके मैंने जॉब करने का सोचा था, बट आई एम प्रोवाइडिंग जॉब टू समबडी एंड दे आर गेटिंग देयर फर्स्ट सैलरी क्रेडिटेड. तो कितना अच्छा लग रहा हूँ. उनको भी वाज हैप्पी. नेवर थॉट कि 22 की एज पे मैं किसी को सैलरी दूंगी. Correct. That is such a good feeling, of course. Like, सच्ची में, nobody expects that. Everyone wishes that. A lot of people can't get that. But for the people who do, it's very impressive. It's very inspiring, definitely. तो खुशी मेरे को एक बात बताइए. जैसे, when I was in college, or like just when my school had ended, when we just entered college and all, I had a lot of friends, like female friends at that age, जिन लोगों ने अपना Instagram pages बना दिया था for personalized gifting. At this age also, I know a couple of people जिन लोगों ने अभी चालू किया अपना personalized gifting का पेज. बहुत सारे पेजेस है, आप भी जानते हो कि like a lot of people enter this page. Correct. बट ऐसा क्या हुआ? What was the difference कि आप इतना स्केल कर गए और वो लोग तो बस उतने ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ही केटर कर पा रहे हैं आज तक, या मे बी थोड़ा फ्रेंड्स एंड फैमिली के बाहर हियर एंड देयर, बट नॉट अ डिफरेंस मेकिंग बिजनेस. आप समझ रहे हो? आपने बहुत ज्यादा स्केल कर लिया कंपेयर टू ऑल ऑफ दीज बिजनेसेस. ऐसा क्यों हुआ? लाइक व्हाट वाज द डिफरेंस? Okay, so one thing that I feel is कि I've been very patient with this business. ओके. कि ठीक है, एक महीने में उतने ऑर्डर्स नहीं है जितने लास्ट मंथ में है, तो आई एम नॉट स्टॉपिंग देयर. ओके. अ लॉट ऑफ पीपल 100 में से 80 पेजेस इसीलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंटली करते ही नहीं है. करेक्ट. उसमें से जो 20 लोग बच जाते हैं, उसमें से दे आर नॉट एबल टू, लाइक अभी का ट्रेंड इज दैट दे हैव टू कीप द सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग. Like, so they are not either able to manage the social media, या फिर they are not able to keep up with the trends. Like, there are a lot of customized giftings, but tell me, have you seen the music bricks in any shop? No, I'm not. Because they are doing customized gifting, but as I told in the beginning, they do those mugs, frames, t-shirts. They do printing and customizing on that, but the trend has changed now. People need something उसके आगे, because that has been for past 20-30 years. लोगों ने बहुत सारे मग्स प्रिंट करवा लिए, बहुत फ्रेम्स प्रिंट करवा लिए. नाउ दे वांट समथिंग डिफरेंट. दैट इज व्हाट आई थिंक, दैट कि वो लोग ट्रेंड के साथ कीप अप नहीं कर पा रहे होंगे मे बी इसलिए. सो आई वुड से कि जो ट्रेंड में आ रहा है, कि लोगों को क्या चाहिए वो अगर आप दे सको तो डेफिनेटली आई थिंक इट विल वर्क. दैट इज व्हाट आई फील. बट फिर भी मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर जो काम आप कर रहे हो, अगर वो सेम टू सेम काम भी कोई और पर्सन कर रहा है, तो भी जरूरी नहीं है कि दोनों स्केल कर पाए. आप समझ रहे हो? कुछ तो और भी, मतलब अदर देन ट्रेंड्स, कुछ तो होगा कि आप स्केल कर पाए. आप इतने सारे कस्टमर्स पर अट्रैक्ट कैसे किया आपने? ओनली बिकॉज ऑफ योर कंटेंट गेम. दैट इज दिस व्हाट आई थिंक, बिकॉज आई कीप देम एंगेज्ड. तो आई एम श्योर कि अगर मैं उनके साथ एंगेज रहूँ तो दे आर नॉट गोइंग टू मिस बाइंग अ गिफ्ट ऑन एनी स्पेशल इवेंट. I keep reminding them कि ये आ रहा है. I keep up posting Valentine's. अरे तो Valentine's I keep posting everything. और एक महीने पहले से पोस्टिंग हाँ चालू कर. Because मैं I like doing research कि हाँ भाई क्या चल रहा है. I keep scrolling endless reels, not to pass my time but just to see कि चल क्या रहा है exactly. And based on that I make reels of my own. If there's some content going viral, I put myself in it. I record it myself. And so that is what I think, that keeps, we had also built a kind of trust in people. And just being offline is not the go, I think now, for at least customized things in the niche market. Online presence strong hona is important, what I feel. And website hona bhi important hai, but
इंस्टाग्राम जहाँ पे लोग आपको देख पा रहे हैं, वहाँ पे उनके साथ इंटरेक्ट कर पाना, बीइंग ट्रू टू देम, लेटिंग देम नो. अब मैं अगर ऑर्डर्स प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ, अभी जब शार्क टैंक में देयर वाज अ सर्ज इन ऑर्डर्स, सो आई डिड गो लाइव. आई टोल्ड देम कि मतलब देखो मैं ये कर रही हूँ, तो प्लीज गिव मी एटलीस्ट 2 to 3 days to accept new orders. So everybody is okay with that, and that is what is keeping them engaged with the account कि ठीक है 2 दिन बाद हम ऑर्डर करेंगे. दूसरे यहाँ पे दे आर नॉट एबल टू अपडेट देम विद कि हाँ भाई ये ट्रेंड चेंज हो रहा है या ये प्रॉब्लम है, तो मे बी वो वहाँ पर नहीं जाकर कोई और प्लेटफॉर्म से गिफ्ट खरीदने का सोच रहे. दिस इज व्हाट आई फील. Makes a lot of sense. And one more thing that you mentioned कि ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस होना जरूरी है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑनलाइन. यस, जब वो उनको देखो, पहले लोग ऑफलाइन क्यों खरीदते थे? क्योंकि ऑनलाइन खा ही नहीं और खादी ही और ट्रस्ट नहीं होता था. करेक्ट. आज ऑनलाइन कंटेंट के वजह से ट्रस्ट इतना अच्छे से बिल्ड हो गया. जैसे आपने बोला कि उनको फर्क नहीं पड़ता एक हफ्ता लेट है, उनको आपसे चाहिए क्योंकि वो ट्रस्ट है, राइट? तो ट्रस्ट जब बिल्ड हो जाए तो किसी को ऑनलाइन खरीदने में क्या ही प्रॉब्लम है? इट इज सो मच मोर कन्वीनियंट फॉर देम. जो चाहिए वही आ रहे घर बैठे बैठे, कहीं जाना नहीं है, किसी को लाना नहीं है. ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ अगर ऑनलाइन हो तो ऑफलाइन में स्कोप नहीं है. ऑफ कोर्स जो लोग ऐसे है 20% लोग हैं दोज हु आर नॉट विलिंग टू बाय इट ऑनलाइन, बट दैट इज आई थिंक दैट इज द नेक्स्ट स्टेप वंस योर ऑनलाइन प्रेजेंस इज स्ट्रॉन्ग. एंड आई थिंक इन दिस इंडस्ट्री, आई एम जस्ट स्पीकिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री, FMCG है कुछ, तो ऑफकोर्स आपको ऑफलाइन जाना ही है भाई. आपको डीमार्ट में दिखना है तो आपको सारे स्पेशलिटी स्टोर में दिखोगे तो ही बिकोगे. दिस इज जस्ट टू दिस इंडस्ट्री वेर यू आर इनोवेटिंग समथिंग. अगर आप कुछ नया कर रहे हो तो इट इज नेसेसरी कि वो सोशल मीडिया थ्रू सब तक पहुंचे, तो ही आपका प्रोडक्ट सब तक पहुंचेगा. सिर्फ दुकान में रहेगा तो वो एक उतने ही एरिया को केटर करेगा. नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू डू. एंड वंस यू आर online present everywhere, everybody knows about you, there's a hype, then go with offline stores and go with merchandising things and everything. I think that will work. Makes sense. Can I give a small suggestion? You tell me if that is relevant for your business or not. Will it work for you or not? I'll also learn कि क्या आपका perspective है उसमें. ठीक है? एक suggestion है. I'm not from this state. I have no idea about the costing, about I have no idea. I'm just giving what's this coming in my mind. After online, rather than opening up a fixed store, what you should probably do is Lil Flea होता है, the Lil Flea, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल होता है, इसे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं. वहाँ आपने 3-3-4-4 डे के केओस ले लिए, स्टॉल्स ले लिए, बट वहाँ पे मेरे को मालूम है ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो ऑन द स्पॉट पर्सनलाइजेशन करता है. करेक्ट. तो आप वहाँ पे जाके आपके ही सेट नंबर ऑफ SKUs उस पे जिसको जो पर्सनलाइजेशन कराना है ऑन द स्पॉट कराते थे. तो मे बी दैट कुड ऑल्सो वर्क रियली वेल फॉर अ सर्टेन वाइल. 1-1.5 साल 2 साल हमने यही किया, हर जगह हमने हमारा स्टॉल डाला, वहां से हमने रेवेन्यू किया, और 2 साल के बाद हमने अब एक फिक्स स्टोर डाल दिया. टेल यू आई डू दैट बिकॉज मुंबई में जितने भी कॉलेजेस में फेस्ट होते हैं, बीट मिठीबाई, NM, एंड्रूस, सब कॉलेजेस में आई डू पुट अप स्टॉल्स. सो आई एम डूइंग इट बाय देयर. मैं कॉलेज फेस्ट में देयर इज ऑलवेज अ प्रिटी लिटिल शॉप का स्टॉल. इन एवरी फेस्ट आई पुट अप स्टॉल्स. सो क्योंकि मुझे पता है मेरी चीजें कॉलेज के बच्चे ही खरीदेंगे सबसे ज्यादा. पोलरॉइड्स वगैरह बिकॉज इट इज जस्ट फॉर 6 rupees. दे डोंट माइंड बाई 100 of them कि हाँ भाई हम पूरा रूम सजाएंगे इससे. आई जस्ट सेलेक्ट फॉर 6 rupees each. एंड आफ्टर शार्क टैंक इतने ज्यादा ऑर्डर्स आ गए कलर्स के, आई हैड टू स्टॉप इट फॉर 2 weeks. सो आई थिंक आई एम डूइंग दैट. तो कॉलेजेस में तो मैं डालती हूँ, लाइक फेस्ट रहेंगे तो आई पुट अप स्टॉल्स. इवन एग्जीबिशंस होते हैं, बोरीवली आर्ट फेस्टिवल वगैरह, तो आई पुट अप स्टॉल्स ओवर देयर एज वेल. मेरे खुद के कॉलेज में तो होता ही है मेरा स्टॉल कि हाँ भाई कोई भी फंक्शन आ रहा है तो PLS का स्टॉल तो होगा ही. सो ऑन दिस लेवल वी आर डूइंग. अभी तक बड़े लेवल पे हम लोग नहीं गए थे. ऑफकोर्स इसके पहले तो मैं मेरे लेवल पे करी थी, बट ऑफकोर्स वी हैव दैट. बिल्कुल, बट इट शुड बी अ स्टार्ट. मेरे को वी आर गोइंग टू गो फॉर द नेस्को में जो एग्जीबिशंस होते हैं, लाइक गिफ्टिंग एक्सपो वगैरह, वी आर गोइंग टू डू दैट एज वेल. वी आर प्लानिंग टू cater internationally as well, and corporate में we are trying to enter with a new gift because corporate में customized gifts देने वाले बहुत लोग हैं, but वो यही है डायरीज, पेन्स, बुक्स, प्लांट. तो I think कि this is different and a lot of people are asking for it, so why not? Correct. Makes sense, definitely. But again, yes, the physical space will make a huge difference. वो और ज्यादा आप लोगों को कनेक्ट करा देगा. Yes, and because एक तो शॉप होना ही चाहिए. This is what I think. एक तो कहीं पर तो दिल्ली में, मुंबई में एक तो ना कि हाँ है इनका एक शॉप है, कलकोट की कुछ भी, और एक शॉप तो है वी कैन गो देयर
we can talk to them. करेक्ट करेक्ट नहीं, बट आई एम श्योर कि आपका सोशल मीडिया वैसा हो गया है कि किसी को वो डाउट तो नहीं आएगा कि शॉप नहीं भी है तो भी And it is still very you know organic, मतलब it is very raw. अभी तक तो इतना प्रोफेशनली तो किया भी नहीं है. इट इज स्टिल वेरी रॉ. मेरे जो सारे रील्स देखोगे मैंने खुद ने शूट किए, सब खुद से. मैं स्क्रिप्ट भी खुद से ही लिख देती हूँ. हाँ चलो मैंने रील बना के बिल्कुल ये. तो दैट इज हाउ इट इज गोइंग. सो इफ इट इज स्टिल प्लेइंग अ मेजर रोल इन माई सेल्स, प्रोफेशनली करोगे तो इट विल बी सो बेटर. एंड नाउ दैट वी हैव अ टीम एंड वी आर स्टार्टिंग डूइंग इट कि अच्छे थे, तो आई थिंक ऑफ कोर्स जैसे जैसे हमने पहले बोला आप 0 to 1 ले गए, और आपको 1 to 10 के लिए आपको मालूम भी है कि वो क्या करना है उसको 1 to 10 लेके जाने के लिए. व्हाट इज बेटर देन दैट? so we have two major sharks in our Yes. journey. Those are going to. करेक्ट. सीधा नंबर ही आपका उनके पास है. वाओ, दैट इज रियली क्रेजी ऑनेस्टली. They're very kind. I'll tell you, they're very very kind. I have never gotten a chance to meet any of them. I never thought they would be. इतने बड़े इन्वेस्टर्स है कि उनको तो जरूरत भी नहीं है मेरी ऐसे देखने जाते. बट दे आर वेरी काइंड. At the same time उनका काम भी है कि जो मतलब you know. But they gave me a deal, right? Yes. They did not even get an equity. Why would they invest their time in me? Just ऐसा सोचने जाओ तो. Correct. But still. You know खुशी, अभी आपने मेंशन किया जस्ट कि आपका बिजनेस ज्यादा स्केल कर पाया क्योंकि यू आर वेरी वेरी पेशेंट एंड लाइक इट वाज ओके अगर आपको वो रिजल्ट जो सोच लेते हैं वो नहीं दिख रहा था तो ठीक है. इससे मेरे को बस एक क्विक एग्जांपल अपना खुद का देना है. एंड आई थिंक दैट फॉर एनी यंग एंटरप्रेन्योर this is the biggest advice they can get when they're starting something new. When I started my brand a year ago, the first में क्या तो मेरे expectations थे. मैं आपको सच बताऊँ यार, मैं ऐसा ब्रांड बनाएंगे, इतने ऑर्डर्स आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे. ठीक है. फर्स्ट मंथ हमने एक रिसेंटली एक रील भी डाला पूरा जर्नी के ऊपर. फर्स्ट मंथ हमको सिर्फ 5 ऑर्डर्स है. पूरा महीने का 5 ऑर्डर. ऑल फ्रेंड्स दोस्त ने चालू किया, सपोर्ट करेंगे. सेकेंड मंथ 9 ऑर्डर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली. अब मैं तो भाई बोल रहा भाई ये तो चलने नहीं वाला, ये तो बिजनेस नहीं चलेगा, अभी बंद कर दो. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वही करते हैं कि देखते 2 महीना कुछ हो रहा नहीं है, बंद कर देते हैं. टुडे अ ईयर लेटर वी आर डूइंग 50 ऑर्डर्स अ डे. That's amazing. एवरी डे वी शिप 50 ऑर्डर्स. That's amazing. तो And that is what patience is. पेशेंस. वो 1 साल लगा. Correct. अभी भी मैं उधर नहीं हूँ जिधर मेरे को पहुंचना है. इसके लिए अभी भी आई एम ओपन टू रीब्रांडिंग दैट वी आर डूइंग. वी आर कंप्लीट. They are in the same boat. एग्जैक्टली. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप, क्योंकि लोग समझते ही नहीं, हम लोग इतना स्टबर्न हो जाते नहीं, हमको ऐसे ही करना है. अरे तो वो कितना कुछ करना है, उसके लिए थोड़ी बहुत चेंजेस अगर करनी पड़ी तो थोड़ा टाइम रुकना पड़े तो क्या प्रॉब्लम है. Every day is not a rosy day. आज 100 ऑर्डर हम लोग कल आएंगे ऐसा नहीं है ना. एग्जैक्टली. आज शाहरुख खान के बेटे ने भी जब अपना ब्रांड लॉन्च किया था डेवॉल, तुरंत फर्स्ट डे थोड़ी ना वो ब्रांड ऐसा का ऐसा हो गया. Exactly. आज 1 साल बाद आज आप कितने सारे लोगों को डेवॉल ने देखते हो. लाइक Exactly. आप समझ रहे हो. Yes. इवन फॉर समवन लाइक दैट इट टुक सम टाइम, बेसिक टाइम. It's still common. Yeah, तो still we don't have that reach. We will have to give it some time. And I know so many people जो लोगों ने बिजनेस चालू किया बंद कर दिया, फिर कुछ नया चालू किया बंद कर दिया. अरे कोई बिजनेस सेट ही नहीं हुआ. प्रॉब्लली जो तुमने पहला चालू किया था वही सेट हो जाता, Exactly. और तब इतना टाइम और एफर्ट्स उसी में ही डाल जाता. तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग एनी फाउंडर कैन गेट. दैट वेट. ट्राई करते रहो नई नई चीजें, स्टबर्न मत रहो, वेट करो, हो जाएगा. Try in that same industry if you're sure कि अब इसी में करना है तो उसी में कुछ और तो ट्राई put your time and effort in that और Exactly. Keep trying. 10 रील नहीं चलेगा, 11 रील हिट हो गया, क्या मालूम. मैंने भी क्या सारी रील्स तो लेना नहीं ऐसे आती है, कोई आती है बट वो कोई मेरे को मोटिवेट करती है और वैसे ही. Exactly. And that is something people really need to understand and like start implying it also. खाली जानना नहीं है कि हाँ we have to stay patient. नहीं, what is patience वो समझो. Correct. कि patience क्या होता है वो समझो पहले. Like आप समझ रहे हो, that is very important. खुशी, tell me, entrepreneurship is a roller coaster, right? Correct. Tell me one of your biggest ups and your biggest downs. Biggest ups, so I think I can imagine the Yes. Shark Tank episode and that week was your biggest up. I'm guessing. But what was your biggest down? Like, Okay. This journey has not been easy at all because unlike any other entrepreneur, I did not have just business कि हाँ मैं पूरा टाइम इसी को दे रही हूँ. मुझे पढ़ाई भी करनी होती है. I still have a 9.5 plus pointer in all my semesters. So it is not that I'm neglecting my studies या वैसा कुछ. I have to study, I have to do PLS का जो करना है वो भी करना ही है. तो there have been days जहाँ पे मेरे को पूरा एक वीक भी ऑर्डर्स नहीं आए, The whole week I don't have even a single order.
all I do is I scroll the DMs. जिसने inquire किया मैं वापस उनको message करूँ. Hey, do you need anything? Is there any update? Do you need anything else? So there have been days कि जहाँ पे एक भी order नहीं आया हो या कुछ भी नहीं आया हो. ऐसा भी होता भी, ऐसा नहीं है कि मैंने 1000 ऑर्डर डिलीवर तो सारे 1000 मेरे बराबर ही डिलीवर हुए. थोड़े बहुत कुछ किसी में प्रॉब्लम्स भी आते हैं. तो देर इज अ सर्टन थिंग कि आई एम ओपन टू बैड फीडबैक्स एज वेल. इट इज नॉट कि मतलब हाँ सब मुझे प्रेज करे तब तक ठीक है. किसी ने कुछ बोला कि भाई ये ठीक नहीं है या ये खराब है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आई एम ओपन फॉर दैट एज वेल बिकॉज आई एम लर्निंग. आई एम स्टिल लर्निंग. एग्जैक्टली. सो I think that is the best part about Pretty Little Shop, that we are open for bad feedbacks as well. And me, as a person, I'm like, ठीक है जो भी है, अच्छा बुरा जो भी, आपको कुछ अच्छा लगा वो बता, बट बुरा लगा तो मुझे पहले बता. अच्छा तो ठीक है, बट बुरा अगर आप मुझे पहले बताओगे तो I can work on it. I think that is very important to, you know, build a business. कि bad feedbacks को भी आप उतना ही positively ले सको और you can make those changes or work on it. Correct. And second is patience, of course, as you said. I have been very patient, very patient. 3.5 years अभी इतना boom हुआ है. इस last year से the orders have been pretty good. Like we are doing 1 lakh plus in a month. Wow. But उसके पहले it was not like that. कि orders नहीं भी आते थे. तो but I still kept कि हाँ चल कुछ ना कुछ तो होगा. मेरे को इतना तो पता था Pretty Little तो बड़ा होगा. Correct. So it is कि हाँ वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ भरना है. यस. एंड सेकेंडली जब आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे तब आपका फोकस ये होना चाहिए कि अब मैं ऑर्डर्स कैसे लाऊं. आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि वो ऑर्डर्स नहीं आ रहे अब मैं दूसरा क्या एग्जैक्टली ऑर्डर्स कैसे लाऊं और मैं उसको रीच कैसे लाऊं और मैं कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करूं. योर ओनली फोकस शुड बी दैट थिंग. आई थिंक दैट इज अ ग्रेट टेक अवे. एंड इफ पीपल फॉलो दैट नथिंग लाइक इट. चलो खुशी, लेट्स रैप दिस विद वन फन क्वेश्चन. ओके. आपको आज तक का सबसे अनयूजुअल या वियर्ड रिक्वेस्ट फॉर अ पर्सनलाइज गिफ्ट क्या आया रहेगा कि आपने वो मैसेज या वो ऑर्डर देखा, I'm like, what? ये कैसे हो सकता है? Okay. क्या? I'll tell you, not weird order, but what happens in customization, I tell you. A person ordered a gift from us for his girlfriend. हमने वो ऑर्डर बनाया और बनने का उसका मैसेज है भाई हमारा ब्रेकअप हो गया, मुझे रिफंड भी नहीं चाहिए तू भी. दिस हैपेंस, यू नो. लोग ऑर्डर करते हैं, अभी वो कस्टमाइज है ना, वो ले सकता, बेचारा लेगा, उसको बुरा लगेगा, हम रख के भी क्या करें. तो ऐसे ना मेरे घर पे कितने सारे ऑर्डर्स पड़े, यू नो, कि पीपल ऑर्डर बोल एकदम फुल फ्लेज में हाँ बट बड़ा हैम्पर ऑर्डर कर देंगे एंड लाइक नहीं हमारा ब्रेकअप हो गया, वी आर नॉट, प्लीज कीप इट विथ यू. जब हो जाएगा ना तो वरना कोई फिर अगर कुछ और हो गया तो हम इसी को कस्टमाइज कर देंगे. दिस इज व्हाट पीपल डू. Okay, पर वो पड़े लाइक नहीं, we won't customize that. If you have a new girlfriend, you have to place a new order. Of course, I mean ऐसे थोड़ी ना चलता है, उसके लिए ली हुई चीज किसी और को ऐसे होता है, लोग ऑर्डर कर देता है फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई ऊपर नहीं चलेगा. और गलती से अगर वो नई गर्लफ्रेंड कोई बात मालूम पड़ गया कि ये तो मैंने तुम्हारे किसी और के लिए ली थी, तुम मेरे कस्टमाइज, अगर कस्टमाइज नहीं होता तो वो सेम चीज किसी और को भी दे सकते हैं. कस्टमाइज में दिस इज लाइक उसी इंसान के लिए बना, वो उसी को देना पड़ेगा. Oh, God, hectic. That is so hectic. But on that note, Khushi, that was such a good podcast. The biggest learning for me and the audience would be कि at that age, if someone knows how to be patient, then we should just learn from that. Stay patient, stay honest with what we are doing, and success will come, guys. Success will come. खाली रुको, आराम करो, मतलब हो जाएगा, सब होएगा. Patience रखो, success will definitely come. I'm sure the audience. I would like to actually add to that. Yes, what I think is कि कुछ है आपके दिमाग में. You want to start something, don't wait for it. Go for it, start it. There is no right time for something. Yes. And now it is you will be. And actually, if मेरे एज की ऑडियंस अगर ये देख रहे हैं तो एक piece of advice, this is the best age to start something. Correct. Or there's no risk. There is risk. Of course, there is risk as in risk that you take in your business, but you don't have anything to lose. Correct. Once you're engaged in a job or something, then you cannot get back to this. 100%. I would say कि don't wait for it. चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा, तुम लोगों को बताओगे तो पता चलेगा. Correct. Just go for it. There is no right time. When you think of starting something, that is the right time. Just go for it and start it. Correct. This is what I totally agree with that. As I said, today is the youngest you guys will ever be.
आप आज जितने यंग हो, 1 घंटे बाद भी आप उतने यंग नहीं रहोगे. तो right now is the best time to start. Like right now, आप जो भी अभी कर रहे हो, start now. That is the best time to start. And Yes. that was some great conversation with you, Khushi. Thank you so Thanks for coming. Thank you for calling. No, it was a pleasure. It was a Thank you pleasure. for having me over. Thank Cheers, you guys. so much.